میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک دو چیزیں میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ مسلمان کی حیثیت سے آپ سب جانتے ہیں کہ ہم سب جو ہے ہماری خواہش ہوتی ہے، ہماری تمنا ہوتی ہے اور ہم سب دعویٰ کرتے ہیں اور اس میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری پہچان جو ہے وہ عشق رسول اور عاشق رسول کی حیثیت سے ہو۔ میں آپ کے ساتھ خاص طور پہ شیئر کرتا چلوں کہ آپ جو ڈاکومنٹریز آج دیکھیں گے، جو پریزنٹیشنز آپ کے سامنے دی جائیں گی، اس میں آپ دیکھیے کہ عشق رسول کے حوالے سے چیز ابھی جو میرے ذہن میں آ رہی تھی۔ ایک تو جو قرآن سے شروع کرتے ہیں، آپ دیکھیے کہ بار بار قرآن اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ اور تم خدا کی بنائی ہوئی زمین پہ اور دیگر معاملات پہ غور کیوں نہیں کرتے، فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، سوچتے کیوں نہیں۔ بے شمار آیات ہمیں ملتی ہیں قرآن میں اس حوالے سے، غور کے حوالے سے، تدبر کے حوالے سے، فکر کے حوالے سے۔ اور پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جب واقعی ہم قرآن کی کسی آیت کو ہی لے کر اس پر غور اور فکر اور تدبر کرنا شروع کریں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ سامنے کی چیز جو ہے اس کے پیچھے بھی ایک جہان دانش کا اور اس کا آباد ہے۔ آپ اس وقت اس اصلی مقصد کے لیے، اس کی سپورٹ کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو قرآن کی اس آیت سے ہوگا جس میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے ایک انسان کی جان بچائی، اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچائی۔ آپ دیکھیے یہاں مسلمان کا نہیں، بے شمار ہم جانتے ہیں کہ اس شہر میں بڑے بڑے قابل شخصیت ہیں جو اس شہر سے نکلی ہیں، علماء اکرام بھی یہاں تشریف فرما ہوں گے، تو انسان کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ اور آپ مثال دیکھیے کہ ایک انسانیت کی جان بچائی گویا پوری انسانیت کی جان بچائی۔ ہم یہ آیت سنتے ہیں، میں نے بھی یہ آیت سنی، مگر میں نے کبھی غور نہیں کیا تھا کہ جب ہم پوری انسانیت کی بات کرتے ہیں تو اس وقت بھی اگر پوری انسانیت کو ہم دیکھیں اور نفوس کو گنیں تو تقریباً 6.5-7 ارب پر مشتمل ہے یہ دنیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر ایک انسانیت کی جان بچائیں، ایک انسان کی جان بچانے کے لیے 1 روپیہ، 1000 روپیہ، 1 لمحہ، ایک اپنا ساتھ، 1 قدم دیتے ہیں اس کی جان بچانے کے لیے، تو قرآن اس چیز کی آپ کو بشارت دیتا ہے کہ آپ 7 ارب لوگوں کی جان بچانے کے لیے وہ کریں۔ یہ اہمیت ہے اس آیت کی اور اسی لیے آپ یہاں اکٹھے ہوئے۔ دوسرے آپ دیکھیے کہ جب ہم دیکھتے ہیں یہاں بہت سارے شوقت خانم میں تقریباً 70-75% مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے جو مستحق مریض ہیں۔ ان میں گھروں کے سربراہ بھی ہوتے ہیں، ان میں ہماری مائیں بہنیں بھی ہوتی ہیں، ان میں بچے بھی ہوتے ہیں، یتامہ ہوتے ہیں، مساکین ہوتے ہیں۔ یتامہ کے حوالے سے آپ جانتے ہیں آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشارت آپ نے دی، وہ کفالت کے حوالے سے ہے، مگر اس حوالے سے دیکھیے کہ اگر ایک بچہ جو ہے جو مستحق ہے اس کی آپ جان بچاتے ہیں، مگر خاص طور پر یتیموں کی کفالت کے حوالے سے آقا نے فرمایا کہ جس نے یتیم کی کفالت کی وہ قیامت کے روز جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں۔ یہ قرب جو ہے اس قرب کی بشارت دی گئی ہے۔ تو ان عظیم کاموں کے لیے آج آپ اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں اگین اپنی عظیم شخصیت کو بلانے سے پہلے چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ جس مقصد کے لیے اپنے گھر سے نکل کے تکلیف اٹھا کے جس جذبے کے ساتھ یہاں آئے ہیں، اہل پشاور، اہل KP کے، رحمان بابا کے شہر کے لوگ جو ہیں، رحمان بابا کے علاقے کے لوگ جو ہیں، سب سے پہلے آپ اپنے لیے بھرپور تالیاں بجائیں۔ اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارا کام کافی حد تک تھم چکا ہے۔ میں نے تھوڑا وقت بھی اس لیے لیا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم ترین گفتگو جو ہے وہ اب آپ کے سامنے آنے جا رہی ہے تاکہ بھرپور کاغذ پروجیکٹ آپ تک پہنچ سکے، جو کچھ اب تک ہوا ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ تو بھرپور جو پورے سال کی پریزنٹیشن ہوتی ہے، جو چیلنجز درپیش ہیں، جو کچھ اچیو کیا گیا ہے شوقت خانم کی سطح میں، وہ آپ تک پہنچ سکے۔ تو میں درخواست کروں گا، CMO ہیں ہمارے پریزنٹیشن ڈاکٹر محمد عاصم یونس صاحب، آپ چیف میڈیکل آفیسر ہیں شوقت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل ریسرچ سینٹر کے۔ چلیے تشریف لائیے محترم محمد عاصم۔ آپ سب کو
वालेकुम। और मैं आप सबका बहुत शुक्रिया, आज आने का। बहुत सारे फेमिलियर फेसेस हैं जो हर साल हमारे इवेंट्स में होते हैं, तो आप लोगों को ख़ास तौर पे वेलकम बैक। अगले तकरीबन 15 मिनट में मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा सा शौकत खान के जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं पिछले साल की, हमारी जो प्रोग्रेस हुई है, हमारी क्या अचीवमेंट्स थी इस पिछले साल में, उसके बारे में बताऊँ। इस साल का जो ज़कात कैंपेन है उसके बारे में थोड़ी सी बात करें, और फिर जो फ्यूचर के प्लान्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा अपडेट करें। तो हम हमेशा ये कहना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं और बिलीव करते हैं कि शौकत खाना में एक आदमी की या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की सोच या अचीवमेंट नहीं है। ये एक एफर्मेशन है, एक एविडेंस है। ये प्रूव करता है कि पाकिस्तानी कौम अगर कोई भी चीज़ करना चाहे, वो अपना इरादा कर ले कि वो करना चाहते हैं, तो वो अपनी कलेक्टिव विल से ये कर सकते हैं। जो एक्सलेंस है या जो ये मॉडल इंस्टीट्यूशन है जो हमारे मिशन स्टेटमेंट का भी एक हिस्सा है, वो पॉसिबल है पाकिस्तान में। जो परस्यूट ऑफ एक्सलेंस जो है वो सिर्फ एक एलियन या वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं है, वो पाकिस्तान में भी यकीनन हो सकता है। एंड वी बिलीव कि शौकत खान जो है वो पाकिस्तानी नेशन के जो ग्रेटेस्ट एट्रीब्यूट्स और जो पाकिस्तानी कौम के बारे में अच्छी चीज़ें हैं वो ये दिखाता है। सो फॉर इंस्टेंस हमारी जो जेनरॉसिटी है, जो हमारी फिलांथ्रोपी की सेंस है पाकिस्तान में, जो हम चैरिटी देते हैं, वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू जो हमारी इनकम्स हैं इस मुल्क में, जब दूसरे मुल्कों के साथ कंपेयर करेंगे। सिमिलरली जो जेनरॉसिटी टू स्ट्रेंजर्स जो आप लोग सारे आके डोनेट करते हैं यहाँ पे, आप तो नहीं जानते कि आप किसको दे रहे हैं, जो आप एक कॉन्सेप्ट के लिए दे रहे हैं या एक बिलीफ को दे रहे हैं। आप इसलिए नहीं दे रहे कि आप स्पेसिफिकेशंस को जानते हो। सो ये जो है सम ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव्स ऑफ आवर सोसाइटी जो है वो शौकत खान डिस्प्ले या एग्जिबिट करता है। इस वक्त हमारे दो हॉस्पिटल्स हैं पाकिस्तान में और इसी तरह बन रहा है। सबसे पुराना दिसंबर 1994 में लाहौर का हॉस्पिटल खुला था। इस वक्त 22 साल से ज़्यादा हो गए सर्विस प्रोवाइड करते हुए। आई एम श्योर आप लोगों में से बहुत सालों ने देखा होगा। और फिर दिसंबर 2015 में तकरीबन 7.5 साल पहले पेशावर का हॉस्पिटल खुला, जो कि शौकत खान का सेकंड हॉस्पिटल था। ये फेजेस में खुला, पर अभी भी लोग मुझे पूछते हैं कि क्या पेशावर का हॉस्पिटल खुल गया है और क्या वो फुली फंक्शनल है। तो फॉर द रिकॉर्ड पेशावर का हॉस्पिटल फुली फंक्शनल है, उसमें तमाम मोडालिटीज़ हैं कैंसर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की। और हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट फिजिशियंस जो हैं, जो बाहर से ट्रेन होकर आए हैं, वो भी यहाँ बैठे हैं आज। सो पेशावर इज़ फुली फंक्शनल एंड प्रोवाइड सर्विस टू ऑल काइंड्स ऑफ कैंसर पेशेंट्स। और अब जो आप देख रहे हैं ये आर्किटेक्ट्स रेंडरिंग है हमारे तीसरे हॉस्पिटल की, जो कराची में इस वक्त कंस्ट्रक्ट हो रहा है। इसके बारे में मैं और डिटेल में थोड़ी देर में बताऊंगा, सो आई वोंट से एनीथिंग फर्दर राइट नाउ। सो हमारी नेशनल प्रेजेंस है, हम सिर्फ लाहौर या पेशावर या कराची में नहीं हैं, वी आर अ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और हम मुल्क भर में हमारे फुटप्रिंट है। तो हमारा हॉस्पिटल पहला लाहौर में खुला, सेकंड पेशावर में, तीसरा कराची में साउथ अभी बन रहा है, इंशाल्लाह एंड दिस ईयर वो खुल जाएगा। इसके अलावा हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं लाहौर में और कराची में। एंड ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता चलूँ कि कराची का जो डायग्नोस्टिक सेंटर है वो एक्चुअली ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करता है। अगेन वहाँ पे इनफैक्ट फ्रॉम बिफोर पेशावर के खुलने से पहले से हम वहाँ कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं मुस्तैद मरीजों को, लेकिन ओनली कीमोथेरेपी। फिर हमारे 3 वॉक-इन क्लिनिक्स हैं, अगेन लाहौर, पेशावर और कराची। ये वो जगह हैं जहाँ कोई भी मरीज़ जिनको तशख़ीस हुई भी हो या जिनको शक हो कि उनको कैंसर है, वो वहाँ जाके अपना मुआयना करा सकते हैं, अपने टेस्ट रिव्यू करवा सकते हैं फ्री ऑफ चार्ज। और अगर उनका कैंसर निकले और वो हमारे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के मुताबिक निकले तो वहीं से वो एक्सेप्ट हो जाते हैं फॉर ट्रीटमेंट। एंड फाइनली हमारा मुल्क भर में ये नेटवर्क है और कलेक्शन सेंटर्स, लेबॉरेटरी कलेक्शन सेंटर्स। तो एक तो आप लोग हमें डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं ज़कात, अतियात, सदका दे के,
दूसरा जो इम्पॉर्टेंट तरीका है जिससे आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और करते हैं इज़ टू यूज़ आवर लेबॉरेटरी फैसिलिटीज़। मुल्क भर में हमारे लेबॉरेटरी कलेक्शन सेंटर्स हैं, ये वर्ल्ड क्लास लेबॉरेटरी स्टैंडर्ड्स पे ये काम करते हैं। आला मेयार की टेस्टिंग और रिपोर्टिंग सर्विस है आपकी, जो आप यूज़ कर सकते हैं ऑन पेमेंट, नोइंग कि उससे जो मुनाफा है, जो प्रोसीड्स हैं उस टेस्टिंग सर्विस के, उससे भी मुस्तहिक मरीज़ों का फ्री इलाज किया जाता है। एंड जो हॉस्पिटल्स की डेवलपमेंट और एक्सपेंशन और नए हॉस्पिटल्स बनते हैं वो इस रेवेन्यू स्ट्रीम से बनते हैं। सो दिस इज़ अनदर वे इन व्हिच यू कैन सपोर्ट प्रॉफिट कमिंग। हमारी कोर वैल्यूज़ हमेशा से क्वालिटी और इक्वालिटी रही है। क्वालिटी की हमने बात की है कि हम आला मेयार की ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं, द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट और तमाम मरीज़ों को वही स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। ये नहीं कि VIP रूम्स अलग और अमीरों के लिए अलग डॉक्टर और गरीबों के लिए कोई और। हमारे लिए तमाम मरीज़ एक जैसे होते हैं। हमारा व्यू ये है, बड़ा सिंपल है, कि तमाम मरीज़ पेड हैं। 25% जो मरीज़ हैं वो खुद पे करते हैं अपने केयर के लिए, और जो 75% मरीज़ कंसिस्टेंटली 28 साल से फ्री इलाज किया जा रहा है, उनके लिए किसी और ने पे किया है, तो उनके लिए आपने पे किया है। सो तमाम मरीज़ पेड हैं और तमाम को इक्वली हम ट्रीट करते हैं, चाहे हम उनका एक्सेस देखें कि किस तरह पेशेंट्स एक्सेप्ट होते हैं इनके सिस्टम, चाहे हम ये देखें कि उनका इलाज कौन सा होता है, कौन सा डॉक्टर उनका ऑपरेशन करेगा, कौन सी दवाई मिलेगी, या कौन से कमरों में रहेगा। अगर आपका कभी मौका हुआ हो कि आप लाहौर में या पेशावर में हॉस्पिटल आए हो, तो आप इन पेशेंट रूम्स अगर देखें तो हमारे कोई वार्ड्स नहीं हैं, ना ही कोई VIP रूम्स या VVIP रूम्स हैं। तमाम रूम्स 2 मरीज़ों के लिए होते हैं। एंड इट इज़ नॉट अनकॉमन कि एक बेड एक पेशेंट लेता होगा और उसके साथ वाले बेड में सपोर्ट डॉक्टर्स और नर्सेज जो हैं enthusiastic cheerleader है यहाँ पे। तो से सीट लेकिन है ना बखैर दे कैप्चर। So it's not doctors और nurses जो हैं वो blinded होते हैं to the patient's financial status। तो जब हम मरीज देख रहे होते हैं हमें नहीं पता होता कि कौन पे कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। इस स्लाइड पे काफ़ी सारे नंबर्स हैं, I don't expect you to read them all, लेकिन मैं थोड़े से नंबर्स के बारे में ज़रूर बता दूँ आपको। 2022 में हमने 13,000 से ज़्यादा नए कैंसर पेशेंट्स एक्सेप्ट किए थे तो ट्रीटमेंट इन द सिस्टम लाहौर में और पेशावर में कंबाइंड। इसके अलावा तकरीबन 33,000 मरीज ऐसे होते हैं जो फॉलोअप पे होते हैं, जिनका एक्टिव कैंसर ट्रीटमेंट खत्म हो चुका होता है, लेकिन 5 साल तक उनका वो बाकायदगी से आते हैं, उनको डॉक्टर्स इवैल्यूएट करते हैं और उनके टेस्ट्स होते हैं। सो ऑल टुगेदर तकरीबन एट एनी गिवन टाइम 45,000 के करीब मरीज दोनों अस्पतालों में सिस्टम होते हैं और देखे जा रहे हैं। अगर हम नंबर्स देखें तो तकरीबन 20,000 सर्जिकल प्रोसीजर्स हुए हैं इस दौरान, 1 साल में तकरीबन 80,000 रेडिएशन ट्रीटमेंट सेशंस, 70,000 कीमोथेरेपी सेशंस और कंसिस्टेंटली 75% से ज़्यादा मरीजों का कंप्लीटली फ्री इलाज हुआ है आप जैसे जनरल्स, डोनर्स और सपोर्टर्स की वजह से। 2022 में सिर्फ 11 अरब रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया, 11 अरब रुपए खर्चे गए हैं फ्री ट्रीटमेंट पे। आप में से कुछ लोगों को शायद याद हो कि पिछले सालों में भी मैंने जॉइंट कमीशन की बात की है। बट वेरी ब्रीफली, जॉइंट कमीशन एक यूनाइटेड स्टेट्स की ऑर्गेनाइजेशन है जो बाहर के हॉस्पिटल्स को इवैल्यूएट, ऑडिट, असेस करती है और उनको एक्रेडिट करती है। अमेरिका में कोई भी हॉस्पिटल लीगली ऑपरेट नहीं कर सकता अनलेस उनकी जॉइंट कमीशन एक्रेडिटेशन हो। उनकी जो इंटरनेशनल आर्म है इस कॉल्ड जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल, वो उन्हीं रिगरस स्टैंडर्ड्स के ओवरसीज फैसिलिटीज़ को इवैल्यूएट और एक्रेडिट करते हैं। तो 2018 में हमारा लाहौर के हॉस्पिटल की एक्रेडिटेशन हुई जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल से, 2019 में पेशावर के हॉस्पिटल की एक्रेडिटेशन हुई, 2022 में अगस्त और सितंबर में हमने एक नया जो जॉइंट कमीशन की एक नई किस्म की एक्रेडिटेशन थी जो आइडियल थी हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जिनका मुल्क भर में फुटप्रिंट हो, मल्टीपल कैंपसेस हो,
یہ انٹرپرائز ایکریڈیٹیشن میں انہوں نے 3 ہفتوں میں ملک بھر میں ہماری تمام فیسلٹیز کو ایویلویٹ کیا اور اسیس کیا، اینڈ ان سپٹمبر 2022 ہمیں انہوں نے ایکریڈیٹیشن ایوارڈ دی، اور اس وقت ہم دنیا کی دوسری آرگنائزیشن تھے اور پاکستان میں واحد آرگنائزیشن جس کو یہ ایکریڈیٹیشن ملا۔ تو کینسر کا علاج بہت مہنگا ہے، ہم اکثر یہ کہتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم اور بھی بات کریں گے کہ جس ایز این ایگزامپل میں کچھ اکوپمنٹ ہے جو لاہور میں اور پشاور میں ہم نے پچھلے 2-3 سالوں میں انسٹال کیا ہے، اور جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا کہ کتنی مہنگی ہیں یہ مشینس۔ جو ٹاپ لیفٹ پہ اس امیج میں آپ کو نظر آ رہی ہے امیج، وہ ہماری ٹرو بیٹ لینئر ایکسلریٹر ہے، جو ریڈیشن کی فارم سے جو کینسر کا علاج ہوتا ہے اس کی مشین ہے، اور صرف یہ ایک مشین $5 ملین کی ہے۔ پشاور کے ہاسپٹل میں میں بتاتا چلوں کہ 2 اس وقت ریڈیشن کی مشینس ہیں، CT اسکینرز ہیں، 2 MRI اسکینرز ہیں، 9 اسلام آباد صرف ایک پورے ملک میں پیٹ اسکینر ہے اور وہ پشاور میں ہے، شوکت خانم میں۔ سو ریئلی اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی جو ہے وہ آپ کو اپنے شہر میں ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں کراچی کی طرف۔ کراچی میں اس وقت پاکستان کا 3را شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل کنسٹرکٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ ملک کا سب سے بڑا ٹرشری کیئر کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے۔ یہ لاہور کے ہاسپٹل سے 2 گنا سائز ہے، اور اس کا گرے اسٹرکچر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور اس وقت اس کا فنیشنگ کا کام چل رہا ہے، کمیشننگ میڈیکل گیسز اکوپمنٹ خریدی جا رہی ہے، اندر کی انٹیریئرز فنش ہو رہے ہیں، اینڈ ایز آئی سیڈ انشاءاللہ لائک لاہور لائک پشاور یہ بھی 29 دسمبر کو ہی انشاءاللہ اسی سال کھلے گا۔ اس میں کیا کیا فیسلٹیز ہوگی کافی ڈیٹیل میں ہے، اس میں ایک سمری ورژن ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس کے بیسمنٹ میں ریڈیشن مشینز ہیں، ریڈیشن ڈپارٹمنٹ، گراؤنڈ فلور پہ آؤٹ پیشنٹس کلینکس وغیرہ، فرسٹ فلور پہ کیموتھراپی ڈے اور پیتھولوجی لیب، سیکنڈ فلور پہ آپریٹنگ رومز اور انٹینسو کیئر یونٹ، اور پھر 3 منزلوں پہ ان پیشنٹ بیڈس ہیں۔ سو یہ صرف سائز میں رکنا نہیں ہے، اگر آپ دیکھیں تو لاہور میں اس وقت 5 ریڈیشن مشینز ہیں، اور کراچی میں ہم نے 10 مشینز کا انتظام کیا ہوا ہے۔ لاہور میں 30 کیموتھراپی بیڈس ہیں، اور کراچی میں ہم 70 بنا رہے ہیں۔ لاہور میں 8 آپریٹنگ رومز ہیں، اور کراچی میں 16 بن رہے ہیں۔ So not just in size but in terms of facilities یہ سب سے بڑا ہاسپٹل ہوگا، کیونکہ کراچی itself اتنا بڑا شہر ہے، تو یہ ہاسپٹل پورے سندھ کو اور جنوبی بلوچستان کے مریضوں کو بھی انشاءاللہ سروسز پرووائڈ کرے گا۔ سو اس سال کا جو زکوٰۃ کیمپین ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا پہ بھی، آپ کے ٹیبلس پہ بھی اس کے بروشرز پڑے ہوئے ہیں، اور آل امپورٹنٹ ڈونیشن انویلپس بھی پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس کی تھیم اس سال ہے کہ ہیلپ اس ایز دی برڈن آف کینسر، کہ آج مل کے کینسر کا جو بوجھ ہے اس کو کم کیا جائے۔ اور یہ اگر ہم سوچیں تو یہ ملٹی فیسیٹڈ ہے، بہت قسم کے بوجھ اس کے ساتھ اٹیچ ہیں کینسر کے ساتھ۔ ایک تو آبویسلی جو ڈیزیز کی وجہ سے مریض کو تکلیف یا سفرنگ یا درد ہے وہ ہے، پھر اس کا علاج بہت مشکل ہے، اس کا بہت برڈن ہوتا ہے مریض کو، سائڈ افیکٹس بہت ہوتے ہیں، بہت لمبا علاج ہے، بہت دیر تک چلتا ہے، بہت مہنگا ہے۔ اینڈ بیکاز پاکستان میں خاص طور سے ہم فیملی اسٹرکچر ہمارا اتنا اسٹرانگ ہے، جب کسی کو کینسر ہو تو پوری فیملی افیکٹ ہوتی ہے، 2-3 تو فیملی ممبرس پیشنٹ کے ساتھ آتے ہیں ہاسپٹل ایسے ہی گیون ٹائم۔ اگر اکثر جو بریڈ ونر ہیں فیملی کا، جو ارننگ ممبرس ہیں فیملی کے، ان کو ساتھ آنا پڑتا ہے، اور سمٹائمز ان کو اپنی نوکری چھوڑنی پڑتی ہے تو اس کا الگ فائنینشیل برڈن ہوتا ہے۔ تو کیونکہ ہاسپٹلز ابھی صرف لاہور اور پشاور میں ہیں ہمارے، تو مریضوں کو بہت دور سے آ کے تو ایسی جگہ لاہور میں یا پشاور میں سمٹائمز کئی مہینے رہنا پڑتا ہے۔ تو یہ بہت سارے پرابلمس ہیں ایسوسیٹڈ ود کینسر، اور ہمارا ایم ہے ایز این آرگنائزیشن جو ہولسٹک کیئر پرووائڈ کرتی ہے کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں سوچیں اور مل کے آپ کے ساتھ یہ برڈن کم کریں۔ ایک اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کراچی میں ہاسپٹل، لاہور کے بعد پشاور میں
हॉस्पिटल बनाया, क्योंकि 30-30 मरीज़ लाहौर में KPJ से आते थे, तो हम चाहते थे उनके घर के करीब हॉस्पिटल बने। अब तीसरा हॉस्पिटल इसलिए कराची में बन रहा है ताकि मुल्क के कुछ हिस्से के लोगों को भी थोड़ी आसानी पहुँचा सकें। हमने बात की पहले कि आप डोनेट करते हैं ये जानते बगैर कि आप किसको दे रहे हैं, बट यकीन रखिए जिसके लिए आपने दिए पैसे, जिसका इलाज आपकी वजह से आपकी जनरॉसिटी जो हुआ वो ज़रूर आपको जानते हैं। आप चाहे उनको जानते हो या ना जानते हो, वो आपको डेफिनेटली जानते हैं और वो बहुत ग्रेटफुल है आपके सपोर्ट को। हमने हमेशा अपने ज़कात कैंपेन में एक एक्चुअल कंसल्टेशन को यूज़ किया उनकी परमिशन से। हम एक्टर्स को नहीं यूज़ करते अपने कैंपेन में। मतलब जो आपका बच्चा है, जो 1 साल की बच्ची है, उसका नाम हिरा है और ये लेफ्ट पे उसकी तस्वीर है जब उसका इलाज हो रहा था, और माशाल्लाह 3 साल के बाद वो बिल्कुल याफ्ता है। और जो बाकी इमेजेस हैं वो भी जो नीचे और राइट पे इमेजेस हैं, शायद आप वो भी पहचानें कि ये बच्चे की इन प्रीवियस ईयर्स वो डिफेंसिव आप हैं और अब माशाल्लाह वो भी सेहतयाब होकर तो नॉर्मल ज़िंदगियाँ बसर रहे हैं। एक चीज़ मैं मेंशन कर सकती हूँ कि हमारा एक बहुत सक्सेसफुल स्कूलिंग प्रोग्राम है, क्योंकि बच्चों का कैंसर बहुत लंबा अक्सर 2-2.5 साल चलता है इलाज, उनका स्कूल बहुत मिस होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने कभी स्कूल अटेंड ही नहीं किया है। तो वी डोंट यूजुअली डू दिस, आई विल सिंगल आउट डॉक्टर हारून रफीज़ खड़े हैं, अगर आप खड़े हो जाए डॉक्टर हारून एक सेकंड। डॉक्टर हारून हमारे कंसल्टेंट हैं, उनका ये ब्रेन चार्ज था ये स्कूल प्रोग्राम, और आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक प्रोग्राम कि ये बच्चों ने ऐसे बच्चों ने जिन्होंने कभी स्कूल अटेंड ही नहीं किया था, उन्होंने पहली क्लास का दूसरी क्लास का सिलेबस किया वाइल दे वर इन स्कूल इन हॉस्पिटल। और कुछ बच्चे जो बड़ी क्लासों में थे वो अपना स्कूल का काम लेके आते थे, तो फिर हॉस्पिटल टीचर्स उनको वो काम कराते थे ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। सो दिस इज जस्ट वन ऑफ द थिंग्स जो डॉक्टर हारून इज डूइंग। और जैसे बसी साहब ने भी कहा, जिसने एक ज़िंदगी बचाई है इस तरह है जैसे उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो दिस इज द ट्रू मीनिंग ऑफ द डोनेशंस दैट यू गिव अस। हमारा हमेशा से कोशिश की गई है और हमारा यकीन भी है कि हमने हमेशा ज़कात जो है उसको एज ए सीक्रेट ट्रस्ट ट्रीट किया है और उसको तमाम इस्लामिक इंजंक्शंस और रूल्स के मुताबिक यूज़ किया है। लेकिन हमेशा कुछ हमारे दोस्त थे वो आस्क कि हम इसकी सर्टिफिकेशन भी करवाएँ इंडिपेंडेंटली। तो 2021 में हमने इंडिपेंडेंटली इस्लामिक स्कॉलर से अपनी शरिया सर्टिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट किया और हमारा वो हर साल रिव्यू भी होता है। तो हम शरिया कंप्लायंट भी हैं जिनको वो एक्स्ट्रा एश्योरिटी चाहिए है कि उनकी ज़कात बिल्कुल इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक इस्तेमाल की जाती है। एंड हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, बड़ी ब्रॉडली ज़कात जिस साल में इकट्ठी की जाती है उसी साल में इन इट्स इंटायरिटी खर्ची जाती है। सबसे पहली बात ये कि वो सेव भी की जाती है, इन्वेस्ट भी की जाती है, जिस साल में जमा होती है उसी साल में खर्च की जाती है। सेकेंडली ज़कात सिर्फ डायरेक्ट पेशेंट केयर पर खर्ची जाती है। ज़कात कभी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे या इक्विपमेंट खरीदने पर नहीं खर्चते, सिर्फ डायरेक्ट पेशेंट केयर पर खर्चते हैं। जो हमारा बाकी रेवेन्यू है जो पेइंग पेशेंट से आता है या जो लेबॉरेटरी कलेक्शन सेंटर से आता है वो यूज़ होता है एक्सपेंशन एंड बिल्डिंग एंड सो ऑन। हर चंद साल बाद खासतौर पर जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर ज़रा हीटेड हो तो ये कहानी बार बार स्प्रेड की जाती है कि शायद ज़कात पूरी कर दी नहीं जाती या इन्वेस्ट कर दी जाती है या सेव कर दी जाती है। तो हम नॉर्मली ग्राफ्स वगैरह नहीं दिखाते, बट दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फिगर टू लुक एट। एट द बॉटम हम पिछले 10 साल का डेटा दिखा रहे हैं। इसमें जो ब्लू हिस्सा है वो हर साल में जो ज़कात कलेक्ट की गई है वो दिखा रहा है, और उसके ऊपर जो ग्रे हिस्सा है वो टोटल फाइनेंशियल सपोर्ट जो प्रोवाइड की गई है फ्री इलाज करने में वो है। सो अगर आप बिल्कुल राइट पे देखें तो 2022 का फिगर है। 2022 में हमने तकरीबन 6 अरब रुपए ज़कात इकट्ठी की पूरे साल में, और जो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया था जैसे मैंने कहा वो 11 अरब रुपए है। और हर साल में फाइनेंशियल सपोर्ट ज़कात से ज़्यादा ही है।
which means कि not only रात सारी खर्ची गई है but उसको सप्लीमेंट भी किया है हॉस्पिटल ने बाकी डोनेशन से और हॉस्पिटल रेवेन्यू से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों का मुस्तहिक मरीज़ों का फ्री इलाज हो सके। सो इस साल हमारा बजट काफ़ी लार्ज है पिछले सालों के मुकाबले। क्लिनिकल रेवेन्यूज लार्ज, डोनेशंस जो हैं वो ट्रेडिशनल स्ट्रीम्स हैं हमारी, और वो तकरीबन 23 अरब रुपए का हमारा बजट है इस साल का। उसके अलावा 16 अरब रुपए एक्स्ट्रा हम इस साल कलेक्ट करेंगे इंशाल्लाह, अगेन आपके सपोर्ट से, स्पेसिफिकली कराची प्रोजेक्ट के लिए, और इसकी वजह से टोटल बजट जो है वो 39 अरब रुपए बनता है। इस साल खान साहब हैं नहीं, वरना वो इस वक्त बड़े नाराज़ होते हैं, क्योंकि वो इस तरह के फिगर्स जब हम बताते हैं तो वो कहते हैं कि लोग डर जाते हैं कि मैं अब 5 लाख मैंने देने थे या 1 करोड़ देना था, लेकिन फिर उनको तो इतने ज़्यादा चाहिए। तो इसी तरह 39 अरब बनते हैं, सब 5-5, 10-10 रुपए रोज़ दें, तो इसी तरह बनते हैं। जब लाहौर बना था तो 10 रुपये एवरेज डोनेशन थी, जब पेशावर बना था तो 100 रुपये एवरेज डोनेशन थी। तो ये 5-5, 10-10, 100 रुपये इकट्ठे करके ही इंशाल्लाह 39 अरब। आप ही की सपोर्ट से लाहौर का हॉस्पिटल और फिर पेशावर का हॉस्पिटल बना, और आप ही की सपोर्ट से ये हॉस्पिटल्स चल रहे हैं। हॉस्पिटल बनाना आसान काम है, उसको चलाना और 75% मरीज़ों को फ्री इलाज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और वो आपके सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं था। तो इसी सपोर्ट पे हमारा यकीन है कि इंशाल्लाह ये हमेशा रहेगा हमारे साथ, और इंशाल्लाह आप ही की सपोर्ट की वजह से कराची का हॉस्पिटल और फिर इंशाल्लाह कोयटा में और मुख्तलिफ और जगहों में ये हॉस्पिटल्स बनते जाएंगे, जब तक एक ऐसा दिन नहीं आएगा कि पाकिस्तान के तमाम जो कैंसर के पेशेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं एक शौकत खानम की फैसिलिटी में उनका इलाज मुमकिन होगा। थैंक आवर स्पॉन्सर्स, ये हमारे पूरे ज़िकात कैंपेन के स्पॉन्सर्स हैं इस साल के, उनका बहुत शुक्रिया, पर सबसे ज़्यादा आपका शुक्रिया। थैंक यू।